टीचर को आता है कि नहीं आता, ये टीचर अच्छा है कि नहीं अच्छा। बहुत बार इतने डेरोगेटरी तक कमेंट्स होते हैं. वी सी समटाइम्स दैट we also say those kind of things, that some people who couldn't become something else, by accident became a teacher. But these things do not happen by accident. These are inborn feelings. These are feelings which we acquire from our teachers itself. शायद ही कोई ऐसा टीचर हो जिसका कोई फेवरेट टीचर ना हो. शायद ही कोई ऐसा टीचर हो जो कभी ऐसा ना सोचता हो कि इस सिचुएशन में मेरे उस टीचर ने ऐसा किया होता. you know so I have had a privilege to be on this side. Sometimes I haven't been a full time teacher, but I've been a lecturer at a US university, and then I have been giving these talks so many times. So I met one of the student who is at my position now, where I was few years ago. So I asked him कि कैसा चल रहा है, क्या हो रहा है, how do you advise, how do you work on this? And his exact words were, I only think one thing, कि इस position में हिमांशु क्या करते. So that's the kind of thing, and that's the same which I feel that, okay, my that teacher in so and so year, my that teacher in so and so year, what were they doing? See, we do not forget our teachers. First thing, we never forget our teachers. We may forget our students, but generally speaking, a true teacher also never forgets their students. But from the student side, they may forget few things. They may keep you in mind, in their subconscious mind. They may feel like, okay, एक टीचर थी या एक टीचर था जिसने ऐसा किया था वैसा किया था. वो कौन से टीचर थे जो फिल्मों की बातें करते थे? वो कौन सी टीचर थी जो हर चीज का एक ब्लैक बोर्ड पे डायग्राम बनाती थी? वो कौन से टीचर थे जो ऐसे करके कपड़े पहनते थे? वो कौन से टीचर थे जो ऐसा करते थे वैसा करते थे? हम हमेशा वो याद रखते हैं. वी रिमेम्बर टीचर्स फॉर लाइफ. Now, what my job here is, so that's how I titled the talk, is that, oh my God, teachers, you are teachers. Do you even realize it? Do you even realize what does that mean? Do you even realize standing in front of one class for 1 year? You know, in 1 year, let's say we have 150 to 200 days of classes. So you are going in front of a student. Let's say you teach on a daily basis. You are going in front of one student, even if you teach them for 1 year, at least 100 times. Just imagine, किसी एक के साथ हम 100 बार मिलें. आप सोच के देखो, हम कितने फ्रेंड से 100 बार मिलते हैं. आप सोच के देखो हम कितने लोगों से, इफ यू टॉक अबाउट पीपल हु आर योर फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारे जो और लोग हैं, हम किसी और से बात करें, अब मैं अमित से कितनी बार मिला हूँ, या और जो लोग यहाँ पर हैं मैं उनसे कितनी बार मिला हूँ, या डॉक्टर जया हैं उनसे मैं कितनी बार मिला हूँ, या राम रत्ना के और भी जितने लोग हैं कितनी बार मिला हूँ. लेकिन अगर हम एक बच्चे की बात करें, अपने स्टूडेंट की बात करें, 1 साल भी हम पढ़ाते हैं तो कम से कम 100 बार हम उनसे मिले होते हैं. और 100 बार सिर्फ 5 मिनट के लिए नहीं, सिर्फ गुड मॉर्निंग मैम कहकर ही नहीं, हाउ आर यू बच्चों कहकर ही नहीं, ऑलमोस्ट 40 मिनट्स का एवरेज क्लास होती है. 40 मिनट्स हम उस बच्चे से मिलते हैं. हमारे लिए वो 30 बच्चे होते हैं, 35 बच्चे होते हैं, 40 बच्चे होते हैं. We could feel like, this is a class. We remember few names. There are few teachers who remember all names, but most of the teachers do not remember all names. They see a class as a class. But for that student, the student sees you for those 40 minutes, listens to you for those 40 minutes, feels you for those 40 minutes in their life, impacting their life. So you do not know which student will copy you for what. If you have a habit of touching your head again and again, subconsciously कुछ students में वो आदत आ जाएगी. If you have a habit of, let's say, touching your chin, or even biting nails, or something like wrong pronunciation, or something like using words again and again. Some teachers use okay 20 times in 20 minutes. Some people will say use so many times. ये सारी की सारी चीजें वो सीख रहे होते हैं. तो अब यहाँ पर, after talking for few minutes, as the title says, oh my God, teachers, do you even realize, do you even know
what impact you are having. So here what we are trying to show is that although I say unleashing your secret power, unleashing your secret power, और उसका second part है having a lifetime impact, because we have a lifetime impact on them, whether you realize or not, whether you realize that what impact you have on them, because they are seeing you all the time. स्टूडेंट्स में इम्पैक्ट कैसे आता है, एक एक चीज जो हमने कही है क्लास में, every good thing which we say, every bad thing which we utter, every reaction which we create in the class, the way we deal with a very sincere student, the way we deal with boys, the way we deal with girls, the way we deal with introvert students, the way we deal with extrovert students, the way we create emotions in a classroom, the way we deal with the backbenchers, the way we deal with the front benchers, you know, of course I look forward to meet you in person. So हम बात करते कि एक फ्रंट बेंचर के साथ हम कैसी बात करते हैं, जो बच्चा रोज रोज फ्रंट बेंच पे बैठना चाहता है और हम चाहते हैं दूसरे बच्चे बैठें, हम कैसे उस बच्चे को कहते हैं कि आप जरा बच्चा पीछे बैठ सकते हो. What will happen to that kid? और जो बच्चा बैक बेंच पे बैठता है उसको हम बार बार प्रॉम्प्ट करें, what will they feel? ये सारी की सारी चीजें, बहुत ही छोटी छोटी चीजें. You must be seeing, अभी तक मैंने किसी भी सब्जेक्ट की कोई बात नहीं की. For you always feel about that subject. मैं हिस्ट्री टीचर हूं, मैं इंग्लिश टीचर हूं, मैं मैथ्स टीचर हूं. You are not. मैथ्स टीचर मैथ का टीचर नहीं होता. इंग्लिश टीचर इंग्लिश की टीचर या इंग्लिश का टीचर नहीं होता, वो टीचर होता है. अब वो टीचर क्या सिखाता है वो आप पे डिपेंड करता है. विद दैट इंग्लिश, how you talk about Shakespeare, and with that English, how do you talk about Charles Dickens, how do you talk about चेतन भगत. इंग्लिश टीचर्स को चेतन भगत कभी पसंद नहीं आएगा, वो हमेशा कहेंगे you know उसकी बुक मत पढ़ो, और सारे बच्चे उसकी बुक पढ़ रहे हैं. how will you react to those students? जो बच्चे बुक्स पढ़ रहे हैं चेतन भगत की, और वो कौन है, आमिश त्रिपाठी की, और आप पढ़ते हो चार्ल्स डिकेंस और शेक्सपियर या फिर और कोई पुराने क्लासिक्स, how will you react to them? What will you tell? How will you react to them? Now, if you are with me, I will come to a story. हम जब छोटे थे, हम जब स्कूल में थे, या आप सब जब छोटे थे जब स्कूल में थे, अब तो कितना होता है कितना नहीं होता. There was a teacher, जो होता है हम लोग देखते हैं, एज प्रिंसिपल आप भी देखेंगे और एज स्कूल का स्टाफ आप भी देखेंगे, हम में से कोई छुट्टी जाता है. सो विदाउट टेकिंग द सब्जेक्ट नेम, एक टीचर थी जो छुट्टी पे जा रही थी. तो ऑफ कोर्स कुछ हैंडओवर होता है, कुछ चीजें होती हैं जो हम देके जाते हैं स्कूल को. अब वो किसी भी तरह से छुट्टी पे जा रहे थे, कोई भी बात थी, आई डोंट वांट टू गो इनटू द रीजन. तो उन टीचर ने 2 लिस्ट तैयार की. आई होप सब सुन पा रहे हैं मेरी कहानी. 2 लिस्ट तैयार की. एक लिस्ट तैयार की, द टॉप सिंसियर स्टूडेंट्स ऑफ माई क्लास, टॉप 10 सिंसियर स्टूडेंट्स ऑफ माई क्लास. दूसरी तरफ एक दूसरी लिस्ट तैयार की, जिनको हम कहते हैं शैतान बच्चे. मतलब मैं तो यही सोचता रहता हूँ, एक बच्चा कैसे शैतान हो सकता है. व्हेन यू गो इनटू दैट वर्ड, हाउ इविल इज दैट वर्ड, एंड दैट्स द लिटरल मीनिंग. शैतान को इंग्लिश में इविल ही कहते हैं, और हम कहते हैं शैतान बच्चों की लिस्ट. ये बच्चे शैतान है, ये बच्चा कितना शैतान है, जो भी है. नॉट गोइंग इनटू दैट टर्मिनोलॉजी, हमारी भाषा है, हम किसी भी भाषा में कुछ भी बोलते हैं उसका मतलब नहीं होता. हम जब किसी को कुछ भी कहते हैं उसका मतलब हमेशा नहीं होता, बट दोज थिंग्स गो डीपर इनटू इट. अगर हम साथ में बैठे होते तो हम बात करते हैं कि कौन से टीचर की कौन सी बात हमें छू गई, अच्छे में छू गई और नेगेटिव वे में छू गई. बहुत सारी चीजें होती हैं. कमिंग बैक टू द स्टोरी, वो टीचर जो जा रही थी छुट्टी पर, या जा रहे थे छुट्टी पर, आई डोंट वांट टू बी I want to be gender sensitive here. I'm a feminist in that sense. I take care of those things.
टीचर जा रही थी या जा रहे थे, जो नॉर्मली टीचर के साथ हम टीचर जा रही थी जोड़ देते हैं क्योंकि हमने ज्यादा लेडी टीचर्स को देखा है, बट जो भी है, अगेन आई डोंट वांट टू बी बायस्ड ऑन ईदर जेंडर। छुट्टी पे जा रहे थे वो टीचर, इंग्लिश में इजी हो जाता है वो कहना, द टीचर वाज गोइंग ऑन लीव, so teacher was going on leave, so she prepared, so she told the assistant, जो भी असिस्टेंट है, ऑफिस असिस्टेंट है, उसको बोला कि ये लिस्ट है, ये लिस्ट टाइप कर दो, कोई मिस्टेक ना हो तो वो टाइप कर दो, और जो नए टीचर आएंगे या नई टीचर आएंगी उनको ये लिस्ट दे देना। तो ऑफ कोर्स नए टीचर आए, नई टीचर ने ज्वाइन किया और उनको वो लिस्ट मिली और उन्होंने देखा और उन्हें पता नहीं चला कि जिसने टाइप किया था उसने छोटी सी मिस्टेक कर दी। वो मिस्टेक स्पेलिंग मिस्टेक नहीं थी, किसी बच्चे का नाम मिस हो गया हो ऐसी मिस्टेक नहीं थी, वो मिस्टेक थी टाइटल की मिस्टेक। जो बच्चे टॉप 10 सिंसियर स्टूडेंट्स में थे उनके ऊपर लिखा हुआ था क्लास के सबसे शरारती बच्चे, और दूसरी तरफ जो बच्चे क्लास के सबसे शरारती बच्चे थे जिन पे नजर रखनी थी उनके ऊपर लिखा हुआ था the most sincere topper students of the class. So that assistant switched the list. अब यहाँ पे असिस्टेंट को विलन बनाने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ एक सिनेरियो है, ये सिर्फ एक सिचुएशन है। लिस्ट चेंज हो गई, अब क्लास शुरू होती है। क्लास शुरू हुई और एक बच्चा भागा भागा आया और आके बोला, मैम I got late, sorry, something happened at my home or something, whatever. So that teacher asked, okay, what is your name? So उसने अपना नाम बताया, so and so name, and that name was there in the notorious list kid. और of course उन्होंने कहा कि अच्छा, ये तुम्हारे बहाने अब नहीं चलेंगे, ये पुरानी टीचर के साथ चल जाते थे बहुत बहाने, अब ये बहाना नहीं चलेगा, you can't fool me at all, just stay outside the classroom, I don't want to listen to anything like this. And that student never heard this in his or her life. ये उसने कभी नहीं सुना था क्योंकि वो सिंसियर स्टूडेंट था या थी, और उसने कभी ऐसे शब्द नहीं सुने थे किसी भी टीचर से। पहली बार उसने सुना कि क्लास के बाहर रहो, वो पहली बार एक एक्सक्यूज लेकर आया था, आई थी लेट होकर, और उसको सुनना पड़ा कि तुम झूठ बोलते हो और कोई विश्वास नहीं है तुम पर, और तुमने ये नहीं किया, तुमने वो नहीं किया। और वो बच्चा बाहर बैठा, थोड़ी देर में वो बच्चा क्लास में बैठा, दैट डजंट मीन। और फिर थोड़ी देर में एक बच्चा जो हमेशा ही लेट होता था, हमेशा ही लेट, बहाने, कभी होमवर्क नहीं किया, कुछ नहीं किया, वो आया और टीचर ने कहा क्या नाम है? सॉरी मैम, और नाम देखा, नाम उसका टॉपर के बच्चों की लिस्ट में था, so his name was there in the top list. और फिर उसके बाद उसने जब पूछा कि हाँ क्या हुआ, उसने कहा कि मैम ऐसा हो गया था, वैसा हो गया था। तो टीचर ने कहा कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, आप बैठो, थोड़ा आराम करो, फिर बात करते हैं। So that teacher was invited so beautifully in that classroom for the first time in his or her life. अगेन उसने भी ऐसा कभी नहीं देखा था, इतने अच्छे से ट्रीट किया, टीचर ने कुछ कहा भी नहीं, और फिर पूछा बेटा तुम्हें प्यास तो नहीं लगी, पानी तो नहीं पीना, इसको पानी पिलाओ। उस बच्चे को पानी पिलाया, बैठाया, फिर उसके बाद उससे पूछा अच्छा ठीक है होमवर्क किया? होमवर्क उसने तो कभी सुना भी नहीं था, उसने तो कॉपी बनाई भी नहीं थी, उसने कॉपी ही नहीं बनाई थी, वो होमवर्क कहाँ से करेगा? उसने सुना, उसने बोला मैम वो ना कॉपी घर पे रह गई। बोली कोई बात नहीं बेटा, कर ले आना, ये होमवर्क था, ये होमवर्क कर ले आना, और फिर कल हम उसको क्लास को सुनाएंगे। और फिर जो भी हुआ क्लास में, लेकिन दैट डे उन दोनों स्टूडेंट्स ने जो फील किया, और उस बच्चे ने घर जाकर अपने फ्रेंड को फोन किया, पूछा उससे कि होमवर्क क्या था, और पहली बार उसने बैठकर अपना होमवर्क किया। पहली बार वो बच्चा बैठा और रात भर बैठकर होमवर्क करके अगले दिन वो कॉपी बना के स्कूल लेके गया कि मैम मेरा होमवर्क पूरी क्लास को दिखाएंगी। इतना इम्पैक्ट एक छोटी सी चीज, यहां पर तो हम एक फेक चीज यूज करते हैं कि वो जो लिस्ट हमने रखी,
वो लिस्ट स्विच हो गई, वो सिर्फ चीज को ड्रामेटाइज बनाने के लिए, जिससे हम समझ सकें। वैसे भी आई एम टॉकिंग वर्चुअली, सो वो कहानी और उतनी समझ में नहीं आती, क्योंकि मेरे उतने एक्सप्रेशंस आप देख पाएंगे नहीं देख पाएंगे, हम उसको इनैक्ट नहीं कर सकते, लेकिन वो समझने के लिए ये चीज होती है। लेकिन ये बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं, और बहुत सारी चीजें हमें फायदा पहुंचाती हैं, बहुत सारी चीजें हमें नुकसान पहुंचाती हैं। लेकिन यहाँ पर कौन सी चीज मेन है, वो ये है कि इम्पैक्ट बच्चों पे जरूर 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 होता है, जरूर होता है इम्पैक्ट किसी भी चीज का, वो छोटी सी चीज का। जब किसी टीचर ने मुझे पहली बार मेरा नाम लेके पुकारा था, जब किसी ने बैक बेंचर से बात करने के लिए सबसे पहले आते ही होमवर्क की बात ना करके मूवी की बात की थी, मैं एज अ टीचर, मैं क्लास में गया, मंडे मॉर्निंग मेरी क्लास है, मंडे मॉर्निंग जाते ही अगर मैं सबसे पहले फिल्म की बात करता हूं या करती हूं, तो और कौन सी नई फिल्म आई है आजकल, वीकेंड पे कौन सी फिल्म देखी, क्या वो बैक बेंचर बच्चा बात नहीं करेगा? सिर्फ फ्रंट बेंच से हमें बात नहीं करनी है ना, वो बैक बेंचर बच्चा सबसे पहले उठ के बात करेगा, क्योंकि फिल्म के बारे में, या फिर आजकल फिल्म से भी ज्यादा होता है वीडियो गेम। अगर हम ये कहें कि और आजकल कौन सा नया वीडियो गेम आया है, वीडियो गेम भी नहीं, क्या कहते हैं उसको, गेम की एप्स होती हैं, कौन सी नई गेम की ऐप आई है, कौन सा नया गेम आया है, या फिर जाके हम उनसे पूछें कि बेटा ये आजकल मैंने सुना ये पबजी क्या है, मैंने ये जी सुना था, ये वो जी वो सुना था, और हाँ पबजी क्या है। अगर जाके हम पूछें, या हम उनसे जाके और कुछ पूछें, या हमने किसी के बारे में सुना हो, हम अगर बात करेंगे जाकर स्वामी विवेकानंद की, करनी चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा नहीं करनी चाहिए, हम पूछे स्वामी विवेकानंद क्या थे, हम रामायण की बात करें, हम महाभारत की बात करें, हम राम रत्ना इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ते हैं पढ़ाते हैं, हम पूछे राम के बारे में, वो सब ठीक है। लेकिन क्या हम जाके उनसे पूछ सकते हैं कि एनी ऑफ यू नो अबाउट, क्या यूट्यूब का एक इन्फ्लुएंसर है ड्यूडी पाई, क्या नाम है उसका, प्यूडी पाई की ड्यूडी पाई, उसके बारे में किसी ने सुना है क्या? आप देखेंगे जाकर 90% बच्चे उसके बारे में जानते हैं, हम नहीं जानते। आप अभी अभी अगर मैं पूछ लूं, यहाँ पर 57 लोग हैं, 57 लोगों से अगर मैं पूछूं, तो हमारे एक दो तीन लोग, चार लोग, पांच लोग, आई डोंट नो, उससे ज्यादा कोई बता पाए कि नहीं बता पाए। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली अगर हम क्लास में जाके पूछेंगे तो 90% बच्चे जानते होंगे वो कौन है। पबजी क्या है हमने सुना होगा नेगेटिव वे में, तो नहीं जानते, लेकिन बच्चे जानते हैं, वो है उनका इन्फ्लुएंसर, वो यूट्यूब का सबसे बड़ा इन्फ्लुएंसर है। हमारे इन्फ्लुएंसर्स शायद उनके इन्फ्लुएंसर्स नहीं है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनसे हम कनेक्ट करें, हमें उन्हें, ऐसा नहीं है कि अपने सब्जेक्ट से डाइवर्ट करना है। हम अगर उन्हें मैथ्स, एज अ मैथ टीचर उनको बताते हैं कि रामानुजन कौन थे, कि हम बताएंगे उनको क्या थे क्या नहीं थे, लेकिन अगर उनकी कोई स्टोरी हम सुनाते हैं, उस बच्चे को लेकर हम कोई स्टोरी सुनाते हैं, वो सारी चीजों का इम्पैक्ट होता है, बहुत 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 चीजों का इम्पैक्ट होता है। हम उनसे बात करें, सीधा जाके गुड मॉर्निंग करके वो चीज बहुत मोनोटोनस हो जाती है, हम उसी को दूसरे तरीके से ट्रीट कर सकते हैं, हम बहुत सारी और चीजें कर सकते हैं। और ये तो चीजें वो ही जो हम सोच कर जा सकते हैं, जो हम चीजें प्लान कर सकते हैं, हम उन बच्चों को शामिल कर सकते हैं चीजों में, बहुत सारी चीजों में हम इंटरैक्ट कर सकते हैं। हमारी पावर बहुत ज्यादा है, जैसा मैंने बताया कि दैट वी आर मीटिंग देम फॉर सो मेनी टाइम्स, so many times in 1 year we are meeting them. Then the other thing is that we keep saying कि सब बच्चे अलग होते हैं, लेकिन हम वो क्लास में कैसे उसको एक्सप्लोर करते हैं, बच्चे कैसे अलग होते हैं, how are children different from each other, how is each kid different from each other, what do we have for them? So if we think that we want to cater to all of them, can we really plan that? बहुत सारी चीजें हम प्लान कर सकते हैं। आज की क्लास मैं ऐसे बनाऊंगी या ऐसे करूंगी कि जो बच्चे कभी नहीं बोलते वो आज बात कर सके। कैन आई हैव एन आइस ब्रेकर फॉर दोज काइंड ऑफ किड्स जो कभी बात नहीं करते हैं? कैन आई इनवाइट देम टू डू समथिंग जो वो करते हैं, जो वो करना चाहते हैं, समथिंग लाइक दैट। And again, every subject teacher, every teacher, see, I'm not here to give you ready-made solutions. I'm here to only think about those things so that you are able to think in that direction as well. टाइम हमारे पास कम होता है, बट इतना भी कम नहीं होता। जो आप 40 मिनट्स में कर सकते हैं, आई गारंटी, और मैं कौन होता हूँ गारंटी देने वाला, यू कैन गारंटी योरसेल्फ,
वो आप 35 मिनट्स में भी कर सकते हैं। शायद ही यहाँ पे कोई एक भी टीचर या एक भी एजुकेटर या एक भी स्टाफ मेंबर ऐसा हो जो जो वो काम 40 मिनट्स में कर सकता है, वो 35 मिनट्स में नहीं कर सकता। यहाँ पर 57 के 57 लोग ऐसे हैं जो उस 40 मिनट्स के काम को 35 मिनट्स में कर सकते हैं। तो व्हाई कांट वी डू दैट इन 35 मिनट्स? मैनेजमेंट हमें कुछ नहीं कहेगा अगर हम उन 5 एक्स्ट्रा मिनट्स में कुछ और कर लें। हमें वो 5 एक्स्ट्रा मिनट पीरियड को एक्सटेंड करके नहीं चाहिए, अपने ही टाइम में से हम 5 मिनट काट कर कुछ और कर सकते हैं। अल्टीमेटली इट विल लीड टू बेटर परफॉर्मेंस ऑफ आवर किड्स। वो करेगा ही करेगा। इस एज में कोई भी बच्चा सब्जेक्ट को पसंद नहीं करता है, हम कितना भी बोल लें। इतने बच्चों का बेस्ट सब्जेक्ट मैथ है, इतने बच्चों का बेस्ट सब्जेक्ट इंग्लिश है, इतने बच्चों का, ऐसा कुछ भी नहीं है। उनके सिर्फ टीचर्स फेवरेट होते हैं। जिस बच्चे को कनेक्शन हो जाता है इंग्लिश टीचर से, उसको इंग्लिश सब्जेक्ट अच्छा लगने लगता है। जिस बच्चे को अप्रिसिएशन मिलता है मैथ टीचर से, उसको वो सब्जेक्ट अच्छा लगने लगता है। जिसको एक बार डीमोटिवेशन मिलेगा फिजिक्स टीचर से, वो लाइफ में दोबारा फिजिक्स पढ़ नहीं पाएगा। दिस इज हाउ स्टूडेंट्स माइंड्स आर। हम अगर उनके क्वेश्चंस आंसर नहीं करते, एक बार अगर हमने उन्हें एग्जांपल दे दिया कि बेटा इतने क्वेश्चंस मत पूछो, अगेन जैसे मैंने फिजिक्स का एग्जांपल दिया, नथिंग अगेंस्ट फिजिक्स टीचर्स, बट आई वुड वांट टू शेयर वन स्टोरी हियर। और again we are talking in Hindi and English both, so I think I can tell that story in the perfect way, because again I hope आप ये नहीं सोचेंगे कि मैं कौन से स्कूल में पढ़ा और ये कौन से स्कूल की बात है और मैं कौन से टीचर की बात कर रहा हूँ। इस तरह से जज नहीं करना चाहिए। लेकिन मैं यहाँ पर बताना चाहूंगा कि आई वाज वेरी गुड इन फिजिक्स, लेकिन 11th क्लास में क्या होता है, मतलब बहुत सारे बच्चे कम मार्क्स लाने लगते हैं या बहुत सारे सब्जेक्ट्स बहुत कॉन्सेंट्रेटेड हो जाते हैं। कभी 10th क्लास में होता है, कभी 11th में होता है, कभी किसी के साथ 12th में होता है। तो ऑफ कोर्स आई वाज वेरी इंटरेस्टेड इन फिजिक्स, थिंकिंग अबाउट इट एज वो वर्ल्ड की साइंस है, वर्ल्ड फिजिक्स से चलता है, ऐसा सोचते हैं बच्चे। ऐसा सोचता था मैं कि वर्ल्ड फिजिक्स से चलता है, फिजिक्स के प्रिंसिपल्स वर्ल्ड को लीड करते हैं। सो आई वुड हैव अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस एंड ऑफ कोर्स आई ग्रू अप इन लखनऊ। तो लखनऊ का एक स्कूल था और वहां पर हमारे एक टीचर थे, और ग्रेड 11 में ये इंसिडेंट हुआ। और ऑफ कोर्स आई वुड आस्क अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस। आई वाज नॉट सो टॉकेटिव, बट क्योंकि सब्जेक्ट में इंटरेस्ट था तो मैंने वो क्वेश्चन पूछा। एक क्वेश्चन पूछा, दो क्वेश्चन पूछे, और फिर उन्होंने मुझे एग्जाम्पल बताया। लखनऊ में हमारे, वैसे सभी जगह है इंडिया में, लेकिन लखनऊ में हमारे आम खाने का बहुत शौक होता है। तो उन्होंने आम का एग्जाम्पल दिया कि हम आम खाते हैं, वी ऑल नो आम। आम के ऊपर का छिलका होता है वो हम उतारते हैं, और फिर उसके बाद अंदर पल्प होता है जो कि बहुत मीठा होता है, बहुत अच्छा होता है। लेकिन फिर हम उसमें और अंदर डिटेल में अगर जाएंगे, उस आम को हम और अंदर जाएंगे तो उसमें गुठलू गुठलू होता है। उन्होंने गुठली, जो हम गुठली बोलते हैं, सीड होता है मैंगो का, उसको वो किस किस उसमें कहते थे कि वो उसके अंदर फिर जाके गुठलू होता है। और अगर हम उतना अंदर जाएंगे तो फिर वो हमको कष्ट देता है। एंड दैट स्टोरी डिफाइंड माय इंटरेस्ट इन फिजिक्स। उसी दिन डिसाइड हो गया कि मुझे फिजिक्स नहीं पढ़नी। अगेन मेरा इंटरेस्ट वैसे नहीं खत्म हुआ, जब जरूरत पड़ी तब पढ़ी, तब हुआ, लेकिन उस सब्जेक्ट में जो इंटरेस्ट था, और उसी से पिछले साल के हमारे जो टीचर थे उनको बेस्ट टीचर का अवार्ड मिला था। फिजिक्स के ही टीचर को बेस्ट टीचर का अवार्ड मिला था। और उसके बाद यहाँ पर हमें जो एक फिजिक्स के टीचर मिले, उनका ऐसा हुआ, उन्होंने हमें एक ऐसा एग्जाम्पल बताया कि बेटा क्वेश्चन मत पूछो, सिंपल। और उस दिन फिजिक्स का एंड हो गया मेरे लिए। और ऑफ कोर्स इन द जोकिंग सेंस, उन टीचर का नाम भी गुठलू पड़ गया। बच्चे ऐसा करते हैं, उन टीचर का नाम गुठलू पड़ गया, ये कहानी पॉपुलर हो गई और उन टीचर को गुठलू कहने लगे। लेकिन जिनका इंटरेस्ट फिजिक्स में किल हो गया, वो किल हो गया। सो दीज आर फ्यू एग्जांपल्स जहां छोटी सी चीजें किसी बच्चे के भविष्य को बदल सकती हैं, अच्छे में भी, नेगेटिव में भी, किसी भी तरीके से। तो मोटिवेट करना, बच्चे की प्रतिभा को देखना, वो प्रतिभा हमारे अंदर होती है, वो कहानी हमारे अंदर छुपी होती है जो हम हर बच्चे के लिए बना सकते हैं। बच्चों में बहुत इन्फ्लुएंस होता है,
So each and everything, you are performing in those 40 minutes. आप ये सोच के रखो कि आप जो करोगे, हम कहते हैं फिल्म स्टार्स का बहुत इम्पैक्ट होता है, हम कहते हैं जो लोग टीवी पे आते हैं उनका बहुत इम्पैक्ट होता है। आप सोचो ना, टीवी पे जो लोग आते हैं उनको कितने लोग देखते हैं, और आप अगर ऑन एन एवरेज लेट्स से 10 साल आपने कोई सब्जेक्ट पढ़ा दिया या 10 साल अपने बच्चों को पढ़ा दिया, और हर 10 सालों में अगर आप लेट्स से 5-5 क्लासेस पढ़ा रहे हैं, 5 क्लासेस को आपने 10 साल पढ़ा दिया तो 50 हो गए, और 50 इंटू सो मेनी टाइम्स यू गो इन फ्रंट ऑफ देम। तो उन्होंने शाहरुख खान से ज्यादा आपको देखा है, उन्होंने अमिताभ बच्चन से ज्यादा आपको देखा है, उन्होंने टीवी के किसी प्रेजेंटर से ज्यादा आपको देखा है। हम कुछ भी कहें, कैसे भी कहें, उन्होंने विराट कोहली से ज्यादा आपको देखा है। विराट कोहली ने उतने मैचेस खेले भी नहीं आज तक जितनी बार आप उस बच्चे के सामने जाकर 40 मिनट्स के लिए स्टैंड कर चुके हो। तो किसी भी बच्चे पर इन्फ्लुएंस विराट कोहली की या शाहरुख खान की या वरुण धवन की या ऐश्वर्या राय की या आलिया भट्ट की आपसे ज्यादा नहीं हो सकती, हो ही नहीं सकती, अनलेस आपने 2 ही दिन पढ़ाया हो या 4 ही दिन पढ़ाया हो या 10 दिन ही इम्पैक्ट किया हो। बट ऐसा कोई भी टीचर होता नहीं है। हम कई साल पढ़ाते हैं, बार बार पढ़ाते हैं, बहुत कुछ पढ़ाते हैं, इतनी चीजें कराते हैं। वी नीड टू सी दैट पावर। अब वो पावर हम डेवलप कैसे करते हैं? बाय टॉकिंग टू स्टूडेंट्स। हम बच्चों से बात करें, बच्चों से समझें। कई बार हमारा अप्रोच ये रहता है कि अगर हम बहुत घुले मिलेंगे तो बच्चे हमारी बात नहीं सुनेंगे। हमें वहां बात सुनाना ही नहीं है, हमें तो उन बच्चों के साथ इंटरेक्ट करना है। वो एक सब्जेक्ट है जो हम उनसे शेयर कर रहे हैं, और वो हमसे सीख के आगे बढ़ जाएंगे। और ज्यादातर बच्चे हमसे और आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं, हम यही देखना चाहते हैं। सो उन्हें आगे तो हमें बढ़ाना ही है, हमें उन्हें कंट्रोल नहीं करना। एक क्लास में कंट्रोल करके आप क्या कर लोगे? ज्यादा से ज्यादा ये है कि सिलेबस आप जल्दी खत्म कर दोगे, बस थोड़ा सा डिसिप्लिन ज्यादा हो जाएगा तो आप एक क्लास कम ले लोगे सिलेबस कंप्लीट करने में, दैट्स इट। बहुत फर्क तो नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आपका थोड़ा थोड़ा वो 5-5 मिनट का टाइम अगर बच्चों से इंटरेक्ट करने में चला जाता है तो कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता। और दूसरा ये है, व्हाट आई कम टू वेरी स्पेसिफिक थिंग्स नाउ बिकॉज आई वर्क ऑन यूनिवर्सिटी एडमिशंस। So now I'll come to that point, how you can help out them in choosing their career and college. You need to see कि हम इससे क्या करते हैं। You do not need to just copy your own journey to them. आपने जब मैथ पढ़ी, आपने जब हिस्ट्री पढ़ा, तो उसका क्या स्कोप था, उससे आप क्या करना चाहते थे? आपने हिस्ट्री इसलिए पढ़ी क्योंकि आप आईएएस में सेलेक्ट होना चाहते थे, आपने मैथ इसलिए पढ़ी क्योंकि आप आईआईटी में जाना चाहते थे, आपने फिजिक्स इसीलिए पढ़ी थी क्योंकि आप एटॉमिक रिसर्च करना चाहते थे, आपने केमिस्ट्री इसलिए पढ़ी क्योंकि आप आईसीटी बॉम्बे में पढ़ना चाहते थे, जो इसका नाम पहले यूडीसीटी था, उसमें आप पढ़ना चाहते थे, या फिर आप बॉम्ब बनाना चाहते थे। किसी भी वजह से आपने ये सब कुछ भी पढ़ा हो, आज उस वजह से वो बच्चा नहीं पढ़ रहा है, तो हमें उस सब्जेक्ट की, उस फील्ड की नॉलेज लेनी होगी। वी विल हैव टू गो थ्रू इट, वी कांट स्टॉप स्टडीइंग because in our subject things are not changing. Pythagoras theorem is the same what we studied. Of course ज्योग्राफी में एक चीज चेंज हो गई, हमारे टाइम पे प्लूटो एक प्लैनेट होता था, आज वो प्लैनेट नहीं है, इतना तो हमें पता होना चाहिए। बट अदरवाइज बहुत फर्क नहीं आया। पाइथागोरस थ्योरम आज भी वही है, शेक्सपियर जो हमने पढ़ा था और आज जो बच्चे पढ़ेंगे वो भी वही है। वो चीजें नहीं बदली हैं। बदला क्या है? उस शेक्सपियर की अंडरस्टैंडिंग। 1980s में अगर आप किसी को राम का एग्जाम्पल देते थे तो उनको समझ में आता था, क्योंकि वो रामायण देख रहे थे। 90s में वो नहीं समझ पाए, 2000s में वो नहीं समझ पाए। आज रामायण और महाभारत फिर से दिखाई जा रही तो शायद कुछ बच्चे देखकर वो एग्जाम्पल फिर से समझ सके। लेकिन अगर वो एग्जाम्पल हम थोड़े टाइम पहले देते तो वो बच्चे नहीं समझ पाते। आज उसका हमें क्या करना है? सो वी नीड टू अंडरस्टैंड अ लिटिल बिट अबाउट दोस सब्जेक्ट्स. What are we doing? So my advice is that ultimately they see you. If you tell the same thing that math पढ़ के या physics पढ़ के या chemistry पढ़ के, पहली चीज तो ये आपको तीनों पढ़ना है. You cannot do anything by only math. If you give them this message, their motivation goes heavily down.
You may be good at math, physics and chemistry because that's what the age you come from. For our kids, math, physics, chemistry, that combination is not the only combination. There are people doing very well with math and computer science without touching anything in physics. फिजिक्स को टच भी नहीं किया है और वो मैथ और कंप्यूटर साइंस को मिलाकर वो कितना वंडर कर रहे हैं. वी डू नॉट नो. अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज साइकोलॉजी से जो आप करते थे, आपके टाइम के साइकोलॉजी की जो अपॉर्चुनिटीज थी, आज साइकोलॉजी ग्रेजुएट्स आर running companies. They are CEOs of different companies. Why? Because everybody needs to know how people react, how people act. You need to lead people. आज की skills कुछ और हैं. Technical skills लोगों के पास होती हैं, but the people who lead the organizations are not the technical folks all the time. They are people from history background. They are, आज हमारे RBI को lead कर रहे हैं history के graduate. HP जैसी बड़ी कंपनी जिसको हम सिर्फ लैपटॉप जैसी चीजों से कंपेयर करते हैं, एचपी का लैपटॉप, एचपी का प्रिंटर, उस कंपनी को लीड कौन करता है? एक मिडिवल हिस्ट्री की स्टूडेंट, यू नो, वो लीड कर रही हैं उसको. इस तरह की चीजें होती हैं आज. तो वी कैनॉट जस्ट डिफाइन. आपको करियर और कॉलेज की बात करनी पड़ेगी. अगर आपका एम्बिशन था आईआईटी में जाना, आज सिर्फ वही ऑप्शन नहीं है. अगर आपका एम्बिशन था आईएएस करना, आज वही सिर्फ ऑप्शन नहीं है. आज इंटरनेशनल रिलेशंस में अगर बात की जाए तो सिर्फ ये एग्जांपल नहीं है कि मुझे आईएफएस ऑफिसर ही बनना है. बहुत सारे एग्जांपल्स हैं हमारे पास. सामने एग्जांपल है मिस्टर डॉक्टर शशि थरूर का, जो इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ने बाहर गए, फिर उन्होंने यूनाइटेड नेशंस में काम किया और आज वो एक पॉलिटिशियन है, वो एमपी बने. दैट्स अ डिफरेंट डायरेक्शन ऑल टुगेदर. it's not the only option कि आपको इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ने जेएनयू ही जाना है. बहुत सारे ऑप्शंस चेंज होते रहते हैं और आपको उस फील्ड में, बिकॉज बच्चे आप ही को देखेंगे, बच्चे और किसको देखेंगे? एवरीबडी कैन नॉट अप्रोच द पीपल इन द इंडस्ट्री. कई बार मैं बात करता हूँ बच्चों से कि आप क्या बनना चाहते हो, एंड द स्टूडेंट से आई वांट टू बिकम अ लॉयर. आई आस्क देम, हैव यू एवर मेट अ लॉयर? एंड दे से नो. Of course, becoming a doctor is a different thing. Everybody has met a doctor, but then we need to work with them. We need to talk to them. There would be so many influences on them, which we are creating on a daily basis. So, वो जो 5 मिनट हैं, वो 5 मिनट आप चाहे 5 बार डिवाइड कर दो, क्लास के 5 छोटे छोटे ब्रेक करके आप बीच बीच में कुछ जोक करो या कुछ और करो, और यू डू इट इन द बिगनिंग. आप शुरू में बात करो कि वीकेंड पे आपने कौन सी मूवी देखी, या लास्ट में कोई बात करो जिससे वो नेक्स्ट क्लास में इजीली जा सके. मैथ क्लास के बाद अगर इंग्लिश की क्लास है तो अगर कोई हम वैसी बात कर सकते हैं तो वैसी बात कर सकते हैं. It all comes to us. What are we doing? There are so many things available online. We can refer them to those things which are available online, and ultimately to prepare them. They have all the resources. Today's teachers job is not to just give them information. आज उनको डिक्टेट करके नोट्स लिखा के कोई फायदा नहीं है. They have everything available. आज ऑनलाइन जो रिसोर्सेज शेयर हो रहे हैं, आज जब हम बच्चों को सीधा नहीं पढ़ा रहे हैं, वी आर ट्राइंग टू सर्च ऑनलाइन रिसोर्सेज, वो रिसोर्सेज शेयर हो रहे हैं. आज यूट्यूब वो देख रहे हैं. लेकिन ये बच्चे जब बाहर आएंगे इस करंट सिचुएशन से, मैं पिछले 1 साल से 1.5 साल से यहाँ मुंबई में हूँ. उससे पहले आई वाज इन दुबई, और दुबई में स्क्रीन टाइम बहुत ज्यादा था. लेकिन जब मैं दुबई से मुंबई आया लास्ट ईयर, आफ्टर स्पेंडिंग टाइम देयर, आई गॉट टू लिसन टू पीपल दैट स्क्रीन टाइम आधे घंटे से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 1 घंटे से ज्यादा नहीं होना चाहिए. स्क्रीन टाइम हमने बहुत बात सुनी कि स्क्रीन टाइम को कम करना चाहिए. मुझे बहुत लोगों ने बताया, माई किड इज 8 year old, अभी वो 8 years का हुआ, लॉकडाउन में इसका बर्थडे था. So he was 7 year old. तो सब लोग कहते थे कि उसको ऐसा टीवी देखना, वैसा टीवी देखना, स्क्रीन टाइम, टीवी तो एकदम होना भी नहीं चाहिए घर में. बहुत सारे लोग कहते हैं टीवी था नहीं, ये नहीं था, वो नहीं था. बट नाउ वी आर टेलिंग देम टू हैव स्क्रीन टाइम फॉर द होल डे. सारी क्लासेस ऑनलाइन होंगी, दे नीड टू बी ऑनलाइन. मतलब हम कहना क्या चाह रहे हैं? व्हाट आर वी टेलिंग देम?
क्या वो इससे बाहर आ पाएंगे? जब हम उन्हें बाहर निकालना चाहेंगे अगले महीने या उससे अगले महीने या उससे अगले महीने, जब भी ये सिचुएशन खत्म होती है, विल दे कम आउट ऑफ दैट स्क्रीन टाइम? हम क्या उन्हें दोबारा कह पाएंगे कि बेटा तुम्हें सिर्फ आधा घंटा स्क्रीन टाइम होना चाहिए? बच्चे की नजर से हम देखें तो वो कहेंगे मम्मी या टीचर या स्कूल या डॉक्टर या किसी को भी, वो क्यों ना जवाब दें कि क्या अब मेरी आंखें खराब नहीं हो रही? आप मुझे पिछले 5 साल से, 10 साल से, 8 साल से कह रहे हो कि आप की आंखें खराब हो जाएंगी, बेटा टीवी मत देखो, बेटा ये मत करो। आज हम उन्हें स्क्रीन टाइम ही स्क्रीन टाइम दे रहे हैं। सो द थिंग्स विच वी ब्रिंग इनटू देयर लाइव्स, इंटेंशनली और अनइंटेंशनली, वी हैव सो मच पावर। जैसा कि मैंने कहा, जब लोग ये बात कहते हैं, शाहरुख खान, वरुण धवन, आलिया भट्ट, कैटरीना कैफ या विराट कोहली, रोहित शर्मा या महेंद्र सिंह धोनी या सचिन तेंदुलकर का इम्पैक्ट सबसे ज्यादा होता है सोसाइटी में, झूठ, गलत। उनका इम्पैक्ट नहीं होता सबसे ज्यादा सोसाइटी में। हम कितना टाइम स्पेंड करते हैं, आप एक स्टूडेंट की जर्नी देखो, सिर्फ एक क्लास में देखो, एक स्टूडेंट अपने टीचर्स के साथ कितना टाइम स्पेंड करता है, कितना टाइम स्पेंड करता है। आप सिर्फ वो देख के देखो और फिर देखो कि आपका इम्पैक्ट कितना है, कितना इम्पैक्ट आपका होता है उनकी लाइफ में। जब वो बच्चा सीईओ बन जाएगा, जब वो बच्चा डॉक्टर बन जाएगा, इमेजिन वन ऑफ योर डॉक्टर्स इज गोइंग ऑन a current situation duty to a hospital. The things which you shared with that student will define. स्कूल ने, माँ बाप ने उस बच्चे को क्या सिखाया है will define how will that doctor act in such a situation. वो डॉक्टर एक चिट्ठी लिखकर छुट्टी मांगेगा कि करंट सिचुएशन में मुझे छुट्टी मिल जाए, या वो डॉक्टर एक्स्ट्रा आवर्स करेगा कि इस सिचुएशन में और ज्यादा काम की मुझे जरूरत है? वो अपने टीचर्स से ही इन्फ्लुएंस होकर वो करेगा। उसके टीचर्स ने उसे क्या सिखाया है, दैट्स सो मच इम्पोर्टेंट। एक 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 जोक जैसी चीज है, वो आपने सुनी भी होगी। जोक तो नहीं, बहुत ही गहराई है उसमें। जैसे कहते हैं कि एक बार ऐसे ही, मतलब वो आता कहाँ से है कि आप एक पार्टी में हैं और कोई आपसे पूछता है कि अच्छा आप क्या करते हो, तो आप कहते हो जी मैं डॉक्टर हूँ। वहीं पे बात खत्म हो जाती है। कोई आपसे उतना ज्यादा डिटेल में जाके नहीं पूछता, अच्छा कौन से हॉस्पिटल में आप जाते हो, क्या करते हो, क्या नहीं करते हो। लेकिन अगर आप बताते हो कि आई एम अ टीचर, तो तुरंत आगे उन्हें डिटेल चाहिए होता है, अच्छा क्या पढ़ाते हो, बिकॉज दैट्स द ओनली थिंग you need to explain it more. But then on the other side, when you say कि एक टीचर क्या बनाता है, एक टीचर, एक डॉक्टर क्या बनाता है, एक इंजीनियर क्या बनाता है, एक कोई और टेक्नीशियन क्या बनाता है, वो सब कुछ बहुत बनाते हैं। लेकिन टीचर्स क्या बनाते हैं वो हमें कुछ नहीं पता। हम सब कुछ बनाते हैं। टीचर्स मेक everything, everyone, each and everything. Whenever there are people who achieve something, whenever there are people who get patents of different things, आप कहीं से भी लेके कहीं पर भी लेके जाओ, लेकिन जो चीज हम टीचर से सीखते हैं वो हिडन पावर होती है, वो सीक्रेट पावर होती है। उसको अनलीश करना हमारी जिम्मेदारी है, हमारी पावर है। आई डोंट नो हाउ आर वी डूइंग ऑन टाइम। इफ Amit, you can prompt me, I can see time here. How are we doing on time? We are So good, and we have we around are 15 minutes. on course with time, Yeah, 46 minutes so I so far. think, okay, thank you. So I think agar kuch, We can wrap up in 15 minutes. yeah, 15 minutes more. so if you want me to talk about some specifics, I can take a minute to take those Right. notes. अगर किसी का कोई No. क्वेश्चन है या किसी का कोई कमेंट है, I can share some examples because I've worked with almost 2,500 schools across India and Middle East and America and all.
तो बहुत So- सारे एग्जाम्पल आई कैन शेयर, नॉट माई नॉलेज बट एक्सपीरियंसेस. सो 1 मिनट मैं देता हूँ, आप थोड़ा देखो समझो, और So if you have. I would like you to throw some light on importance of writing letter of recommendation, जो कि normally teacher से ही letter of recommendation लिया जाता है university admissions के time पर. So I feel most of the teachers have very less experience. बहुत कम teachers ने letters of recommendations लिखे होंगे university admissions के लिए, और अगर लिखे भी हैं तो जो उन्हें ठीक लगता है वैसा लिखा है. Would you Okay. give us some tips, क्योंकि मुझे लगता है ये बहुत important है कि letter of recommendation एक बहुत ही important document है. So if you can throw some light कि teachers किन चीज़ों को highlight करें बच्चों का letter of recommendation लिखते वक्त. Right. Okay. Yeah. So that's a very good question, and that has been a big contribution to the student's life. Practically speaking, marks बच्चे कहीं से भी ला सकते हैं, हम पढ़ाएं नहीं पढ़ाएं, और बहुत सारी चीजें हो सकती हैं. लेकिन one thing which is a direct impact from our side is a recommendation. So I was a lecturer in the US in 2010. And I still write recommendations for those students. कभी कभी उन्हें जब कॉलेज के टाइम का चाहिए होता है and they're working, so I still write recommendations for them, even for the US. So I see the importance, कितनी importance है उसमें. So what we can act here on those things is that there are few things which we remember about the students. We can make notes, and of course this is students' duty to come to us to tell us that I may want to apply to certain universities where a recommendation letter is needed. I'll give an example. Instead of telling you a few points, I'll give an example how a good recommendation can be. One thing before that, how it can go negative. It can get negative in that sense that it is very superficial. हमारे यहाँ पर बच्चे को प्रेज करके रिकमेंडेशन लिख दिया जाता है. What we are doing is we are only putting adjectives. The student is punctual, the student is good. But हमारे सबसे बड़े फिलोसोफर प्लेटो भी गुड को डिफाइन नहीं कर पाए. उनकी एक बुक है जिसमें पूरी बुक उन्होंने स्पेंड कर दी है सिर्फ गुड को डिफाइन करने में, और अल्टीमेटली डिफाइन उन्होंने तब भी नहीं किया. वो पूरे मार्केट में वहां पर ग्रीस में घूम रहे थे, गुड क्या है, गुड क्या है, गुड क्या है, व्हाट इज गुड, व्हाट इज गुड, व्हाट इज गुड, और हम गुड का ही यूज करते रहते हैं. दिस इज गुड स्टूडेंट, अमेजिंग स्टूडेंट, वेरी गुड स्टूडेंट. वेरी का क्या मतलब होता है? वेरी वेरी गुड स्टूडेंट और गुड स्टूडेंट में क्या फर्क होता है? क्या हमने डिफाइन किया है? नोबडी हैज डिफाइंड दैट. गुड स्टूडेंट क्या होता है, वेरी गुड स्टूडेंट क्या होता है? So a lot of times we need to talk about their progress, their journey, that maybe in grade 9 you taught them for the first time. So you tell them that this student came from a vernacular medium. ये मराठी मीडियम से आया था, हिंदी मीडियम से आया था, उर्दू मीडियम से आया था, या गुजराती मीडियम से आया था. He was struggling with English. He was struggling on those things. And then he took those classes. He took that. उसने फिर वो समझा. उसने मैथ में अच्छा किया. उसने फिर so he developed those things. अगर हमने ये उसका एग्जाम्पल देखा है. या फिर कोई बच्चा बहुत कम बोलता था और अब ज्यादा बोलता है, या उसका फोकस नहीं था अब हो गया है. या फिर ऑन द नेगेटिव साइड एज वेल, इफ वी कैन स्टैंड बाय देम कि इसकी फैमिली में ये इशू हो गया था जिसकी वजह से इसमें ये इम्पैक्ट आ गया, या वो हो गया, या ये कम बोलने लगा या ज्यादा बोलने लगा, जो भी चीजें हैं, we need to present them and to give a completely different example. And this is what I do when I do recommendation letter talks with the teachers in schools. What I tell them is give example of a cook. Cook जो खाना बनाते हैं. तो उसका एग्जाम्पल ऐसे हम देते हैं. लेट्स से आई आस्क वन ऑफ यू, शनाया खान, मुझे नाम सामने दिख रहा है. तो इफ आई आस्क शनाया खान कि मुझे एक कुक चाहिए, राइट? अब शनाया खान वो कुक को ढूंढेंगी और मुझे बताएंगी कि ऐसा कुक. अब वो जो रिकमेंडेशन है उसमें ये नहीं बताया जाएगा कि हिमांशु सर दिस कुक कैन कुक वेल. वो तो ऑब्वियस है. वो तो ऑब्वियस है ना. अगर मैं ड्राइवर की डिमांड कर रहा हूं तो ऑब्वियसली रिकमेंडेशन में ये नहीं लिखा जाएगा ही इज अ गुड ड्राइवर. नहीं, वो तो बेसिक रिक्वायरमेंट है. ये एक बड़ी गलती करते हैं स्टूडेंट्स के साथ हम टीचर्स. वी डू नॉट हैव टू से द बेसिक्स. वो तो ऑब्वियस है.
उस कुक का हमें एग्जाम्पल देना पड़ेगा। अगर उन्हें लगता है कि हिमांशु देव सुबह जल्दी उठते हैं, तो आप बताओगे कि हाँ, ये कुक सुबह जल्दी आ सकता है, टाइम से आता है, लेट नहीं करता है। अगर हिमांशु देव को हेल्दी फूड पसंद है या जंक फूड पसंद है, जो भी चीज पसंद है, वील टेल देम ये बना सकता है। इफ आई लाइक वेजिटेरियन फूड, तो वो बताना होगा उसमें ही इज अ वेजिटेरियन, ही कैन कुक वेजिटेरियन फूड वेरी वेल, उसकी इतनी वैरायटी है, उसकी इतनी वैरायटी है। ये चीजें जो सेकेंडरी थिंग्स होती हैं वो इंपॉर्टेंट बन जाती है। This is how good recommendations come out. So, in a structure level, in a focus level, what I say, you have to be very careful in telling in the recommendation letter in what capacity you know that student. For how long do you know that student? फिर उसके बाद you talk about those skills which you are endorsing and why are you endorsing. आपको वहां fact checking नहीं करवानी है, आपको वहां लिखना नहीं है he got an award, नहीं. Your job is to tell in that recommendation letter that he deserved the award because this and this. You do not have to say, remember, you do not have to say he got the best student award. नहीं, वो आपका काम नहीं है to tell he got the best student award. नहीं, आपको ये बताना है why he deserved to get the best student award. You know, so this is my message to understand how this thing is. और कोई point which you would want me to address? Detailed understanding of students' background, circumstances, changes over the years, good insight. Okay, yeah. You know, थोड़ी सी चीजों को डिटेल में बताना is the main purpose. You choose 3 things about that student and try to talk about those things. यहाँ पर 10 चीजें नहीं चाहिए, 2 या 3 चीजें जो उस बच्चे के बारे में जो ऑब्वियस नहीं है. अगर उस बच्चे के मैथ्स में 100 में 100 नंबर है, पिछले 4 साल में हर साल 100 में 100 आए हैं, हमें नहीं बताना ही इज अ ब्रिलियंट मैथ स्टूडेंट. नो, वो उसके मार्क्स बता रहे हैं. हमें कुछ और बताना है कि ये मैथ में अच्छा होने की वजह से छोटे बच्चों को मैथ पढ़ाता था. दिस इज व्हाट वी कैन टेल. या कोई बात है? यस, थैंक यू सर. ओके, वेरी गुड एक्सप्लेनेशन, थैंक यू. ओके, सो अगर कुछ बातें हो गई अच्छी तो हम यहाँ खत्म करते हैं. मुझे इजाजत दीजिए. और यू नो, और कोई कमेंट है तो वी कैन ऑलवेज डिस्कस. आई एम ऑलवेज अवेलेबल. आई एम जस्ट कॉल अवे. आप कभी भी मुझसे बात करिए. ऑफ कोर्स अ चैट अवे. फील फ्री टू रीच आउट टू मी ऑन एनीथिंग, whether you need something from me or from anyone else. You know, my resources are all available for you. I would be happy to share whatever I've learned, whatever I have seen. And of course, I'll be happy to approach you as well for anything. So all the best. Congratulations on the power which you have, and try to unleash that on a daily level. All the best in impacting students and the country and the world. Thank you for being a teacher. Thank you for being an educator. Thank you for being a good listener for this hour. Thank you. So Himanshu ji, thanks to you. It has been a wonderful session, and this wonderful enlightening session. Yeah. so this was the very first Aadharshila talk, and you have really made a good Aadharshila for us to carry it forward, because the foundation for any learning is for the teacher to realize how important is her role. And thank you for highlighting that again. I'm also very happy to share with you that some of the school parents are here with us in this session. There are some teachers from other schools who are with us, and so your impact has gone beyond RRIS, and I'm sure it's going down to the children who are coming across all the teachers of RRIS. So on behalf of my school management and the school family, I thank you once again. It was a great pleasure to have you. It was a privilege to have you. Wish you all the very best, and look forward to having your guidance for our students in the future. Ma'am, I would like to say something. Can I share? Yes, please introduce yourself and. Thank you, Jaya ma'am, for arranging such a good webinar. Actually, I'm not from your institute, but I have seen your webinar on THC. So I was so impressed. I have added you on Facebook. Then you
you have posted, I think so, Himanshu sir, that this session is going to go. I was waiting from 1 o'clock nearby, as Wow. long as 3 times. So, so please send me the recording. And if such webinars will be there, I'm on FB. You have added me. You can just send an Yes. invitation. I'll So- be joining it happily. So Shanaya ji, thank you for being here with us today, and we are going to have these talks for the next 8 days, and you can use the same link. We will be posting on Facebook as well, and we would Yes, love to yes. have you with us in our future Yeah, talk. I'll be there. Thank you very much, ma'am. Thank you. Is there any parent from our Thank you. school who Thank you, would like to Sonia. speak? Mrs. Parekh and Mrs. Guha, anyone who would like to share their views? Hello, ma'am. I'm Nirav Mehta. Oh yes, sir, Mr. Mehta. Namaste, sir. Namaste, ma'am. Namaste, Dev sir. Your session, I was willingly waiting to hear from today morning itself. And I have heard you initially also when you came down to Mira Bhaidat for the session which was organized by RRIS. And it's very influencing across parent fraternity as well as the teachers on the way you conduct these sessions. I mean, it's so simply it defines the depth of the meaning and goes so well down, each and every one of us that it remains as uh, the words of inspiration for each and every one of us. And I would like to thank RRIS School for organizing this out of the box thing in such times. It's quite utilization of time in a wonderful and remarkable manner. So I thank Principal Ma'am as well as you for conducting this session. Thank you, Neeraj ji. Forward to Thank see you, you. sir. Thank you, Nirav ji. Yeah. So thank you all. Thank you, RIS. Hello, Thank I'm you, Divya. everybody. Thank you, ma'am, for helping me to get into this session. Our And pleasure. ma'am, I'm also learning. Earlier I was a parent, now I become a teacher, so I'm also learning new things. Because teaching your own child is something else, and teaching to a number of students becomes a big responsibility. And I never realized that we are more grateful to their arcade than any actor actresses, or is even some of the parents who are working. They come in the evening. We are attached to the arcade more better way, and more give more time to. So we should be that impressive and that patience, and should handle arcade very well, and try to understand why they are not able to grasp certain thing and help them out while doing some other way activity to make them feel good and get involved in the activity what we are teaching to them. Though my students are very small, they are young toddlers, but this was very enlightening, and I'm very happy to be this part of Ashila. Thank you, ma'am. Thank you, Divya. Thank you, ma'am. And in fact, Yes, you are dealing with the impressionable age. So they are very young, but that is the right age to put in the right seeds. Yes, Thank that's you. what You're doing great. helped me out. I will make sure that this will go along with my school, with all the teachers, and I give these words to Manchester's words to my teachers to be that way, to implement that way, and be impressive to all the students what they are doing, they are teaching. Thank you Your teachers are so much. your teachers are most welcome to join the talks. I'll recommend. Tomorrow I'll you ask can them to pass be. on the link But to your other. anyways, I have recorded your session, so I'll share with them. Yes, please do that. Thank you so much. Thank you. Thank you. Thanks a lot. So, Himanshu ji, if you don't mind, if you share your email ID with the staff, in case if they want to individually chat with you, ask any queries in due course of time. We also have Miss Supriya Naravankar who would like to speak. So, Miss Supriya ji, please at the mic and share with us whatever you want to speak. Yes, Supriya ji, you can unmute yourself and
Shanaya ma'am, I would request you to mute yourself, please. Okay, Shanaya. okay. Yes, Supriya ji. And request you to start the camera, please. From Billabong. Hello. I'm sorry, ma'am. I'm not able to hear you. Supriya ma'am, can you type out your question in the chat box? We'll be able to see it there. We are barely able to hear you. Yes, ma'am. Please type. So I guess Himanshu sir has given his email ID. So possibly if I can request Supriya ma'am to email Himanshu sir and he'll be gracious to respond to us. Thank you so much. Thank you so much everyone for being a part of this session. And thank you so much Himanshu sir for this wonderful session. A reality check. I think Supriya ma'am just mentioned she would like to attend more. Of course, tomorrow we will have our session starting at 2:30 p.m. It's a long session by Mr. Devesh Patija, and the link will remain the same. And I will be your host, and I'll be back. Thank you so much, everyone, for joining in. For tomorrow, I just have to add there are 2 slots by Mr. Devesh Bhatija. One is for primary teachers, the other is for secondary teachers. Mainly it is about math, but he would see to it that the strategy is explained in such a way that the other subject teachers can also understand. So the teachers can join any one of the slots. We will give you more clarity in due course of time today. The admin staff can decide whichever slot they would like to join. It could be there as a foster parent, or you can just join as a parent, depending on the class your own child is in. So it was a great pleasure, and thank you for always being there as a family. Great support from each one of you. Thanks to Amit sir for hosting this. Thanks to Mr. Dev, and looking forward to many more exciting sessions at Adharshila Talks. Take care. Stay safe. All the best. Thank you so much, everyone. Goodbye. Bye bye. Thank you.